Hello and welcome to our presentation. My name is Mohammed Abdullah Nizami and I am the group leader of Group 10. My group members are as follows: Moiz Munawar, Fazeela Jamal, and Asad-Ullah Khan. Our topic for our presentation is topological sorting. So let's begin. First, let's take a look at what's ahead. सबसे पहले हम introduction देखेंगे कि topological sorting होती क्या है. Then moving on, हम देखेंगे कि it's not unique and what being unique means for a graph. Then we'll move on to an example जिसमें हम एक example solve करेंगे साथ कि topological sort एक हम apply कैसे करते हैं graph पे. Then we'll take a look at its algorithm and how it works. And then finally हम उसके cases देखेंगे, best, average and worst cases. So let's proceed. Number 1, introduction. What is topological sorting? Well, by definition, it is the technique used in graph theory to order the vertices of a directed acyclic graph, DAG for short. It ensures that for every directed edge from vertex A to vertex A comes before vertex B in the ordering. But ये थोड़ा confusing है. What does this all mean? Well, we'll take a look at that in the next slide. So there are many problems involving a set of tasks in which some of the tasks must be done before others. बहुत सारी ऐसी real life problems होती हैं कि एक problem को solve करने के लिए आपको उसके पहले बहुत सारे tasks complete करने पड़ते हैं. For example, let's take the problem of taking a course only after taking its prerequisites. जैसे कि आप FIP नहीं उठा सकते unless and until you have taken and passed OAD and AI. But OAD और AI को उठाने के लिए भी आपको उसके prerequisites पूरे करने में पड़ेंगे and so on. अगर हम इस information को new students के लिए present करना चाहें in a graph, we can do it this way. हम दिखा रहे हैं कि OOP सबसे पहले है. अगर आपको DSA चाहिए तो आपको OOP पास करना होगा. अगर आपको DBMS चाहिए तो आपको DSA पास करना होगा and so on. अगर आपको FIP2 चाहिए तो आपको FIP1 and HCI पास करना होगा. But presenting information in this way is very confusing for new students. So what can we do? Is there a way of linearly arranging the courses in the order that they should be taken? Yes, that is exactly what topological sort is. Topological sort एक confusing से graph को आपको linearly arrange करके दे देता है, जिसमें हर course का prerequisite उससे पहले ही आता है. कोई भी इसमें आप नहीं देखेंगे कि उससे पहले आ जाए, उसके prerequisites के बगैर आ जाए. Like DSA के सारे prerequisites उसके पहले ही होंगे, AI के सारे prerequisites उसके पहले होंगे, OAT के सारे prerequisites उसके पहले होंगे. तो topological sort एक linearly way में arrange कर देता है with every prerequisite coming before. अगर हम इन दोनों को compare करें तो इसमें हम clearly देख सकते हैं मेरा point क्या है कि AI जो है वो सिर्फ उसी के बाद आया जब उसके सारे prerequisites complete हो गए, right? वो DM के बाद आया. ऐसे ही FIP2 जब ही आया जब उसके सारे complete हो गए. Let's take FIP1 for example. वो भी जब ही आया जब उसका OR जो necessary था उसके लिए, क्योंकि वो FIP1 के लिए necessary है, and दूसरे वो भी OOP के बाद ही आया क्योंकि OOP पहले करना था ताकि हमारे पास OR unlock हो, and then OR किया ताकि FIP1 unlock हो. हमने definition में देखा था कि ये topological sorting acyclic graphs पे apply होती है, but difference क्या है acyclic and cyclic difference पे? Well, difference is कि acyclic में एक loop form नहीं होता. इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि acyclic graph में हमेशा एक ऐसा node होना जरूरी होता है जिसकी कोई incoming edges नहीं हो. इसमें आप देख सकते हैं कि 0 की outgoing edges हैं, meaning 0 पे डिपेंड करते हैं 1 and 2, बट 0 किसी और उस पे डिपेंड नहीं करता. अगर आप 0 पे 1 जाएं and then 1 से 2 जाएं, you cannot find your way back to 0. This is not forming a loop, and so this is acyclic. Cyclic में reverse होता है. There is always a loop. So क्या मतलब? 0 जो है 1 जो है वो 0 पे डिपेंड है, okay. 2 जो है वो 1 पे डिपेंड है, cause incoming का मतलब होता है कि आप डिपेंड करो किसी पे. बट हम ये देख रहे हैं कि 0 2 पे भी डिपेंड है. So it's a never ending cycle. 0 के लिए आपको 1 चाहिए, 1 के लिए आपको 2 चाहिए, and 2 के लिए आपको 0 चाहिए. So this cannot be done in topological sorting. आप इसको linearly arrange नहीं कर सकते. Okay, so let's talk about what it means for a graph to be unique, or in our case, not unique.
A directed graph G is a unique path graph with respect to a source vertex S if there is at most one simple path from S to any vertex. To better understand this, let's look at the graph below. ये एक ग्राफ है. Let's say कि हमारा सोर्स वर्टेक्स S है एंड वो किसी भी वर्टेक्स पे अपना पाथ ढूंढना चाह रहा है, सिंपल पाथ. सो लेट्स टेक I फॉर एग्जांपल. क्या ए I तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ ले सकता है? लेट्स टेक अ लुक. आप A से E जा सकते हैं एंड देन E से I, दैट्स वन पाथ. आप A से C जा सकते हैं, C से F, F से H एंड देन H से I, दैट्स टू पाथ्स. A से B, B से E से G एंड देन G से I. माय पॉइंट इज नो, एक ही पाथ नहीं है, बहुत सारे पाथ्स हैं जो आप ले सकते हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं. सो इसका मतलब है कि ये नॉट यूनिक. इसका मतलब अगर हम इस ग्राफ को टोपोलॉजिकली सॉर्ट करें तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आ सकते हैं. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A B C D E F G H I, इसमें हर जो वो नोड आ रहा है उसके प्रीरेक्विजिट्स उसके पहले ही आ रहे हैं. जैसे कि B के पहले उसका A आया. क्यों? क्योंकि B A पर डिपेंड करता है. बट सिमिलरली C के पहले भी A आया है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. C के बाद B क्यों आ रहा है? क्योंकि C और B दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे बोथ डिपेंड ऑन A, बट वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So they are all correct topological sorting of the same graph. आगे जाके हम एग्जाम्पल देखेंगे इसकी कि इसका क्या मतलब. जब हम लोग DFS अप्लाई कर रहे होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हो बट दे आर स्टिल करेक्ट. So now I'm going to show you an example and I'll solve it on paper for you ताकि आपके लिए बहुत easy हो फॉलो करना. ओके, अब हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की एक एग्जांपल करेंगे. टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम DFS से करते हैं और हम ये ऐसे करते हैं कि जब एक नोड के सारे चाइल्ड विजिटेड हो जाते हैं तो फिर हम उसको एक रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. जब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाए. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई अ नोड जिसके अंदर नो इनकमिंग एजेस हो, मतलब जिसके अंदर कोई भी एरो नहीं आ रहा. इस पूरी एग्जांपल में सिर्फ एक नोड है जो है A, जिसके अंदर कोई भी एजेस इनकमिंग नहीं है. सबके अंदर इनकमिंग एजेस हैं, मतलब सारे दूसरे नोड्स किसी ना किसी और पे डिपेंडेंट हैं. B A पे डिपेंडेंट है, C A पे डिपेंडेंट है एंड J F पे डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम A. A से हम DFS स्टार्ट करेंगे. अच्छा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूनिक नहीं होता, तो हम या तो B पे जा सकते हैं या हम D पे जा सकते हैं. आई चूज B. तो DFS स्टार्ट करते हैं हम A के लिए. ठीक है, हम उसके एक चाइल्ड में गए जो B है. B के दो चाइल्ड हैं, लेट्स गो टू F. F के भी दो चाइल्ड हैं I एंड J, सो लेट्स गो टू I. I के हम देख रहे हैं कि देयर आर नो फर्दर चिल्ड्रन, तो फिर हम I रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे. सो दैट मीन्स हम लोग I यहाँ पे लिख देंगे. ओके, गोइंग बैक टू F, दिस इज डन. गोइंग बैक टू F. F के अभी भी एक चाइल्ड है J. ओके, J का चाइल्ड है यस. J का चाइल्ड है K. K का कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, सो लेट्स राइट K. K इज डन. लेट्स गो बैक. J का कोई फर्दर चाइल्ड है नहीं, सिर्फ एक ही था K, सो वी राइट J. J इज डन. गोइंग बैक टू F. F का कोई चाइल्ड बचा है नहीं, सो वी राइट F. क्योंकि F के दो ही चाइल्ड थे I और J, so F is also done. Now going back to B. B का क्या कोई और चाइल्ड बचा है? Yes, वो है नोड E. So we go to E. E का कोई चाइल्ड है? No. So this means E is also done. So we write E. Now going back to B. B के सारे चाइल्ड विजिट हो गए? Yes. So B is done. We write B. एंड आप नोटिस करें कि मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ. सबसे पहले हमने I के सारे चाइल्ड विजिट हो गए थे, एंड देन K के, एंड देन J के, F, एंड देन E, एंड देन B. ओके, बैक टू A. A के क्या सारे चाइल्ड हो गए हैं अभी? नहीं, A के अभी भी चाइल्ड बचे हैं. सो विल गो टू C. C का क्या कोई चाइल्ड है? यस, G है. ओके, विल गो टू G. अब G का क्या कोई और चाइल्ड है? यस, मगर ये ऑलरेडी विजिटेड है. So this means G is done. We already visited its only child, जो K है, जो हम लोग पहले ही विजिट कर चुके थे यहाँ. So we'll write G. Okay, going back to C. क्या C का कोई और चाइल्ड बचा है? नहीं, G is already visited, so we write C.
Now going back to A के कोई और चिल्ड्रन बचे हैं? Yes, उसका D बचा है। D का कोई चाइल्ड है? Yes, उसका H है चाइल्ड। H का कोई फर्दर चाइल्ड नोड नहीं है, so H is done. We'll write H. Okay, going back to D का कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है। Yes, G था but it's already visited and H था जो हमने अभी विजिट कर लिया, so D is also done. D के सारे चाइल्ड नोड्स विजिट हो चुके हैं। Now finally coming back to A, क्या A का कोई रिमेनिंग चाइल्ड है जो हमने विजिट नहीं किया? D हमने कर लिया, B हमने कर लिया एंड C भी हमने कर लिया, so we finally write A. And this is an example of topological sort. Sure, अगर हम किसी और डायरेक्शन में जाते, जैसे हम लोग पहले A से B पे गए थे, let's say कि हम लोग A पे D पे चले जाते, वो वाली सॉल्यूशन भी करेक्ट होती, एज हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज नॉट यूनिक, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से सॉल्व करें. सो दिस इज अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट. ओके, तो हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया. अच्छा, ये तो हमने खुद किया था विदाउट अ कंप्यूटर, विदाउट एनी एल्गोरिथम. So now let's take a look at how we do it with an algorithm. And for this, my group member Moiz Munawar will explain this slide. Thank you, Abdullah. Assalamu alaikum. My name is Moiz Munawar and my student ID is 10856, and I will be explaining the algorithm of our project by the help of a pseudocode. Now, as you can see, this is a pseudocode for the topological ordering of a directed graph. And this pseudocode, इसका basically मकसद क्या है? What is the main purpose of the pseudocode? ये क्या करता है कि हमारा जो vertices हैं हमारे ग्राफ के अंदर, उनकी ऑर्डरिंग करता है, उनको टोपोलॉजिकली ऑर्डर करता है. एंड व्हाट इज दिस ऑर्डरिंग? इट्स बेसिकली जो हमारी एजेस होती हैं, हमारी वर्टिसेस होती हैं, विच आर वर्टिसेस u एंड v, उनको ऑर्डर करता है इस मैनर में कि जो भी वर्टेक्स u है, इट्स ऑलवेज गोना कम बिफोर वर्टेक्स v इन द टोपोलॉजिकल ऑर्डर प्रोसेस. Now, to further explain this pseudocode, I've broken it down into 4 parts. This will give a better understanding and it's going to be much easier to understand. These 4 parts are initialization, calculations, in-queue initial vertices, and last but not least, topological sorting process. So let's move on with initialization. Initialization. This is the part जहाँ पे हम basically आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से variables हमने initialize करें. They give a better understanding and they're easy to recall when moving on forward with the pseudocode. So as you can see, T is basically the empty list, जिसके अंदर हम final जो हमारा topologically sorted order होगा vertices का, उसको store कर देंगे और उसको हम end में call करेंगे. Next is Z. Z is basically our empty stack. And इस stack के अंदर जितने भी हमारे वर्टिसेस होंगी जिनकी इन डिग्री 0 होगी. नाउ यू आर गोना आस्क व्हाट इज इन डिग्री? इन डिग्री इज द नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस कमिंग टू द वर्टेक्स. एंड जिनकी इन डिग्री 0 होगी, जिनकी इनकमिंग एजेस 0 होंगी, उनको हम इस स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे. एंड द थर्ड थिंग इज दैट हमने एक इन की डिक्शनरी को क्रिएट करा है. नाउ व्हाट डज दिस इन डिक्शनरी डू? ये जितनी भी हमारी इन डिग्रीज होती हैं हमारी तमाम वर्टिसेस की हमारी ग्राफ के ऊपर, उनको ट्रैक करता है और जितनी भी एंट्रीज आती रहती हैं उनको ये ज़ीरो करता रहता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेशंस. सो इन कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं कि हमारा ग्राफ है जिसको हम कहेंगे G, और इस ग्राफ G के अंदर मुख्तलिफ वर्टेक्स V और वर्टेक्स U's प्लॉट हुए हुए हैं. हमें क्या करना है कि हमें हर वर्टेक्स V को इटरेट करना है, लाइक गो थ्रू देम वन बाय वन. एंड इस पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है जिसमें ये हमें करना है कि जो वर्टेक्स u वर्टेक्स v से एडजेसेंट होगा, एंड एडजेसेंट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट वर्टेक्स v, उनको हम इंक्रीमेंट कर देंगे इन डिग्री v के अंदर. नाउ दिस माइट बी अ लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो टू मेक इट अ लिटिल बिट ईजियर इन सिंपलर टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटिंग द इन डिग्री ऑफ v का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम जितनी भी काउंट ऑफ एजेस होती हैं उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं जो कि वर्टेक्स v के अंदर आ रही हैं. So hopefully you understood about the calculation part. Now let's move on to queuing the vertices. Now in this part हम again same चीज़ कर रहे हैं कि जितने भी vertex v हैं हमारे ग्राफ G के अंदर उनको हम iterate कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं. But यहाँ पे condition is a little bit different from the first one. Instead of seeing the adjacent neighbors of each vertex v,
यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम जो वर्टेक्स v जिसका इन डिग्री 0 है उसको हम ऐड कर रहे हैं हमारे empty stack के अंदर, और हमारा empty stack as you remember from the initialization part is z. Now after adding this to our empty stack, हम finally हम जाते हैं हमारे topological sorting process पे. Now in the topological sorting process, this includes our main loop for our pseudocode for our algorithm. So what does this main loop do? This main loop हम इस पे एक condition check करते हैं कि अगर z जो है हमारा empty है, z यानी कि हमारा stack अगर वो empty नहीं है, then हम क्या करेंगे? नंबर 1 हम रिमूव कर देंगे वर्टेक्स v को हमारे स्टैक से. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम लोग वर्टेक्स v को हमारी लिस्ट के अंदर डाल देंगे. एंड रिमेंबर हमारी लिस्ट t है और ये लिस्ट t इज गोना गिव आवर फाइनल प्रोडक्ट. द थर्ड थिंग वी आर गोना डू कि जो हमारी वर्टेक्स u है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है वर्टेक्स v से, मीनिंग इट इज एडजेसेंट टू वर्टेक्स v इन द ग्राफ, उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे इन डिग्री ऑफ u का. एंड द लास्ट थिंग जो हम इसमें चेक करेंगे वो ये है कि अगर इन डिग्री ऑफ व्यू जो कि डिक्रीमेंट हो चुकी है और वो डिक्रीमेंट होते होते वो 0 बन जाती है, तो हम उसको हमारे स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे. फाइनली हमें हमारी जो लिस्ट है t उसको हम कॉल कर देंगे. एंड नाउ यू हैव ए टोपोलॉजिकली सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ आवर डायरेक्टेड acyclic graph. Thank you, and now I'll be passing it on to my good partner Abdullah, who's going to give a description of the time complexity of our algorithm. Thank you, Moiz Munawar. Okay, moving on to our final topic, cases of topological sorting, determining best, worst and average cases. Topological sorting के लिए best case क्या होता है, average case क्या होता है and worst case क्या होता है. So हम start करेंगे best case से. Let's see when our algorithm will be in a best case scenario. This happens when the input graph is already in topological order. अगर वो पहले से ही topological order में होगा तो हमारी algorithm को each vertices of the graph एक ही बार जाना पड़ेगा. Vertex के outgoing edges will also be visited once. तो इसकी time complexity बहुत simple है. हम vertices को add and edges को add कर देंगे. So it will be big O of v plus e, where v is vertices and e is the edges. Moving on to our average case. The average case जब होता है जब distribution task balanced होता है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि each task, i.e. each node, has a similar number of incoming and outgoing edges. उसके similar number होंगे जो depend हो रहे हैं and similar number होंगे कि उस पे कौन depend कर रहा है. तो इसके लिए भी हमारा algorithm v plus e ही visit करेगा. वो हर vertex को visit करेगा and then हर edge को visit करेगा. तो इसके लिए भी big O of v plus e time complexity निकलती है. Last but not least, हम worst case scenario देखते हैं. This happens when the algorithm has to explore all vertices and edges of the directed acyclic graph, DAG. The graph will generally have a high number of vertices and edges. तो the algorithm को सारे vertices and edges पे जाना पड़ेगा. But that is what it does. तो worst case के लिए भी हमारी topological sorting के लिए time complexity v plus e ही होगी. So we saw the worst case for topological sorting, and because of that we can know that the worst case time complexity is also big O of v plus e. Upper bound जो इसकी है वो है big O of v plus e, since it needs to traverse to all vertices and edges in the graph. The main loop processes each vertex and edge once, hence it also takes the same amount of time. तो जब हम इन दोनों को कर देंगे, meaning traverses to all vertices and edge, it gives us our upper bound as mentioned above. Okay, so now let's take a look at the upper bound of our algorithm. The worst case space complexity is big O of v. Our list T and Q, Z hold the most vertices v in the stack. The in dictionary in our program stores the in degrees of each vertex, which all requires O of v space, therefore resulting in the mentioned worst case space complexity.
So let's conclude our presentation. Topological sorting is like putting tasks in an order so you can complete them all without getting stuck. अगर आप सारे incoming arrows count कर सकते हैं एक task के, meaning एक node के, think dependencies, and follow a specific order where you always tackle independent tasks first, no incoming arrows left, you can guarantee finishing all tasks without hitting dead ends. That's the magic of topological sorting. जैसे कि हमने सबसे पहली वाली एग्जांपल में देखा था जब हमने FIB की एग्जांपल ली थी. अगर आप topological sort लेके चलेंगे कोर्सेज को तो आप सबसे पहले उन्हीं सारों को करेंगे जो prerequisites होंगे, and then only after finishing the prerequisites का जब आप मूव करेंगे आके जो मेन कोर्सेज होंगे जिनके कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होंगे, रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, आपको कोई मसला नहीं होगा मूविंग फॉरवर्ड. ये नहीं होगा कि आप FIP उठाना चाह रहे हैं एंड देन आपको वो हो के ओ FIP के लिए तो मुझे AI लेना था या मुझे AI के लिए कोई और सा कोर्स लेना था. टोपोलॉजिकल सॉर्ट्स आपको हेल्प करते हैं कि आप ये अवॉइड करें. सो इन शॉर्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है? ऑर्डरिंग टास्क्स विदाउट गेटिंग स्टक. और इसकी की क्या है कि आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट टास्क पे फोकस करें जिसकी कोई इनकमिंग एरर्स नहीं होती. थैंक यू एंड आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो एंड आपको समझ आया हो कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है.